Soft skills. As we all know, that soft skills are the bedrock of effective communication and collaborations. They play a very important role in shaping our personal and professional life. So, welcome to the Manisha Mishra Show. And today we have an incredible guest with us, Miss Sakshi Garg. She is a soft skills trainer and a confidence building coach. She helps people develop their leadership qualities, effective communication skills, confidence building, and carve out their full potential. Not only in India, she is catering the clients globally as well and creating so much value and impact in the lives of people all over the world. So many congratulations to you, Sakshi, for doing such an amazing work. And I feel so privileged and grateful to host you on my show today. Thank you so much. Thank you, Manisha, for inviting me. I'm really excited to what is going to come forward now, and I'm very happy to be here. Thank you so much for inviting me. Wow, that's so gracious of you. Sakshi, first of all, I would love to know more about you. I have given you a very brief introduction, but when it will come from you, it will be an entirely different experience for our audiences. So, can you please share about yourself with us a little bit more? Sure. So basically, Manisha, मेरा काम ना लोगों को धक्का मारने का है. That Okay. is what I do. Full-time job. ठीक है. Mm-hmm. So whatever people need, whatever confidence they need, whatever push they need, everything is inside them, right? हमारा काम क्या होता है, बस उस पोटेंशियल को बाहर निकालना है, उनको धक्का मारना है कि they move forward in their life, right? So that's what I do. That's my full-time job, ठीक है. right? So basically मेरी education से चालू करते हैं. So I've done my MBA in HR and मैंने B.Ed का course भी किया है because I was a teacher earlier like you were. And Okay. उसके बाद I had a clothing brand. So Wow. that clothing brand actually taught me the skills that I am teaching right now. Right. So clothing brand के बाद मैंने अपना ये institute चालू किया, the Life Skills School, and I'm also a certified. I myself am a certified soft skills coach and an emotional intelligence practitioner. Wow. So, Great. and helping people out is my passion, and I love what I do, and I hope to continue doing this for the rest of my life. I love my job. That's so nice. What a beautiful introduction. बहुत अच्छे से आपने बताया और this shows your passion that you want to do it throughout your life. बहुत अच्छी बात है. So many congratulations. और आप बहुत अच्छा काम कर भी रहे हो. धक्का लगाने वाला काम बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता होता है कि हमारे अंदर क्वालिटीज है, कैपेबिलिटीज हैं, बट उनको चाहिए होता है कि कोई हमको पुश करे या कोई हमारे अंदर कॉन्फिडेंस दिखाए कि हाँ हम कर सकते हैं. And that's what the incredibility lies there. So very exciting, very interesting work that you are doing. So thank you so much. तो अब हम क्वेश्चन आंसर सेक्शन पे जंप करते हैं. तो आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं खुद भी सीखने वाली हूँ. और जो हमारा ऑडियंस बेस है स्पेशली लाइक स्टूडेंट्स, यूथ, इसको बहुत ज्यादा जरूरत होती है. और हाउस होल्ड जो होम मेकर्स हैं उनके अंदर बहुत सारे पावर्स हैं, बहुत सारी क्वालिटीज हैं, बट वो बाहर नहीं आ पाते हैं. तो आपके इनसाइट से, आपकी नॉलेज से, आपके एक्सपीरियंस से बहुत सारा कुछ आज सॉल्व होने वाला है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. ओके. Excited to तो तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि लोग ना जैसे सॉफ्ट स्किल्स के बारे में थोड़ा सा, सॉफ्ट स्किल्स को आप कैन यू डिफाइन, सॉफ्ट स्किल्स क्या क्या चीजें उसमें आती है? क्योंकि जब हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं ना तो लोग काफी कभी कभी ओवरवेल्म हो जाते हैं, कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है ना? तो आप थोड़ा सा उसको एक लेमन लैंग्वेज में अगर आप उसको डिस्क्राइब कर पाओ तो बहुत अच्छा होगा. ओके. सो सॉफ्ट स्किल्स बेसिकली वो स्किल्स हैं जो हमें सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं. ओके. राइट. आप जैसे मैं किसी से अगर पूछती हूँ कि सॉफ्ट स्किल्स का मतलब क्या होता है, तो नॉर्मली आई गेट दी रिप्लाई कि कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट, या फिर ईमेल अच्छे से लिखना या बात अच्छे से कर पाना, दैट इज सॉफ्ट स्किल्स. यस, ये सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, बट ये सॉफ्ट स्किल्स का एक पार्ट होता है.
अच्छा, ठीक एक्चुअल है। में सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं? योर कॉन्फिडेंस, हाउ यू हैंडल अ डिफिकल्ट सिचुएशन, आपका एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, आप कितने अच्छे लीडर हो, आप खुद से कितने connected हो। इनफैक्ट इसमें क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, इनिशिएटिव टेकिंग सब कुछ आ जाता है इसमें, ओके। राइट? सो एक हार्ड स्किल्स होती हैं जो हमारी टेक्निकल स्किल्स होती हैं, और एक सॉफ्ट हम्म स्किल्स होती हैं जो क्वांटिफाइबल नहीं होती है, हम्म। राइट? बट ये सर्वाइवल के लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। ओके, हम्म। ठीक है। तो आपने बताया इनिशिएटिव टेकिंग, कम्युनिकेशन, अच्छे तरीके से बात करना, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना, ये सारी चीजें सॉफ्ट स्किल्स में आती हैं। या वाओ, सो वेरी नाइस। और ये बहुत जरूरी भी है, लोगों को पता नहीं होता है बहुत बार कि हम अपनी बात को दूसरों तक बोले कैसे, और ये एग्जैक्टली। सीखना बहुत जरूरी है। दिस कम्स अंडर सॉफ्ट स्किल्स। वाओ, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल बेसिक लेमन इंट्रोडक्शन। ओके, so now I would love to jump into my another question, which is बहुत बार ना जैसे सोशल सिचुएशंस की वजह से हमारी सॉफ्ट स्किल्स हैम्पर हो जाती है। मतलब कभी कभी ये होता है कि लोगों से बात करने में हम कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लैक करता है, या हमें लगता है कि यार हम कुछ बोलेंगे ना वो सही होगा या नहीं, या लोग हमें जज तो नहीं करेंगे। तो इस तरीके के जो सोसाइटल पर्सपेक्टिव्स हैं, जो कभी कभी तो सोसाइटी बनाती है, कभी कभी हम अपने माइंड में खुद ही बना लेते हैं, तो इनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? आपने एकदम सही कहा, ये होता है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, स्पेशली इंडियंस में तो इतना इनग्रेन्ड होता है, चार लोग क्या कहेंगे, अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे, कि हम कर ही नहीं पाते अपने मन का कुछ, हम्म। राइट? तो इसके लिए ना, one thing I explain to my clients is कि please understand that no one cares about you. ओके। अब I'll ask you this, Manisha. आप ना, मैंने कुछ एम्बैरेसिंग चीज की आपके सामने, ठीक है? कुछ भी एम्बैरेसिंग किया, कुछ भी हटके किया, आप मेरे बारे में थॉट फॉर्म करोगे, यू विल थिंक अबाउट इट फॉर 2 minutes, 3 minutes मैक्सिमम, राइट? उसके बाद आप भूल जाओगे। अब नेक्स्ट टाइम आप मुझे देखोगे तो हो सकता है एक आध बार वो थॉट क्रॉस करे आपके माइंड में, एंड दैट्स इट, हाँ। राइट? या। तो इतने से 1 2 3 मिनट के थॉट फॉर्मेशन की वजह से मैं अपने आप को कितना रोक रही हूँ कि नहीं भाई, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, मुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनना, मुझे ये नहीं करना, मुझे अपना पैशन फॉलो नहीं करना, ये सब चीजें जस्ट फॉर दैट 2 3 मिनट्स ऑफ थॉट। क्योंकि सब अपने ही जिंदगी में इतना बिजी हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, अपने इनसिक्योरिटीज में, कि दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट यू, राइट? सो ये हमको बहुत ज्यादा फ्रीडम देता है कि कोई सोच ही नहीं रहा मेरे बारे में, तो मुझे क्या करना दूसरों के ओपिनियन से, मुझे जो करना है मैं वो करूंगी, वाह। right? बहुत अच्छा, क्या तो टू बात है। अंडरस्टैंड कि नो वन केयर्स, इट्स जस्ट यू, जिसको लगता है भाई यू आर नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, एंड दैट इज वेरी फ्रीइंग। या या वाह, तो बहुत बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने कि लोगों के पर्सपेक्टिव को इस बात से ओवरकम कर लेना कि लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो। ये सिर्फ 2-3 मिनट का बात है, और उसके बाद कोई कोई आपके बारे में सोचता भी नहीं है। वाओ, दैट्स सो नाइस एंड सो एम्पावरिंग एज वेल। एक छोटा सा थॉट आपके इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। थैंक यू सो मच साक्षी फॉर शेयरिंग दिस। सच में ये बहुत पावरफुल थॉट है। मतलब बहुत सारे लोगों को ये समझने की जरूरत है कि किसी को पड़ी नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इसलिए अपने बारे में सोचो, वो बहुत जरूरी है। ब्रिलियंट, वाओ, पावरफुल, थैंक यू। So now I would love to ask you another question, which is related to confidence. You are a confidence building coach. बहुत important होता है किसी की भी लाइफ में कॉन्फिडेंस का होना, और उसका स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो करते रहना। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सब हमारी लाइफ में बहुत बार आता है, बहुत चैलेंजेस लेकर आता है। पर अगर हमें सही स्ट्रैटेजीज, टिप्स और टेक्निक्स पता हो,
तो हम इसको बहुत अच्छी तरीके से केटर कर सकते हैं, जो कि आप हेल्प करते हो लोगों की। ठीक है, तो मुझे बस आपसे ये पूछना था कि कॉन्फिडेंस को ना बहुत बार सेल्फ डाउट से लिंक करके हम बात करते हैं, तो आप क्या प्रैक्टिकल टूल्स या टेक्निक्स शेयर करना चाहते हो मेरे ऑडियंस के साथ कि हम इस जोन से बाहर आए, हमारे अंदर सेल्फ डाउट नहीं आए और हम अपने कॉन्फिडेंस को ऑन अ डेली बेसिस थोड़ा 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 करके नर्चर करते रहे। सेल्फ डाउट तो आता है, देखो, हम्म। ठीक है, मुझे भी आता है। कितने कितने भी फेमस हो जाओ आप, कितने भी अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो जाओ, आता है। हम्म। ठीक है। कॉन्फिडेंस का ट्रू मीनिंग ये होता है, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि मैं चार लोगों के सामने कितने अच्छे से बात कर लेती हूँ, या हम्म। मैं कितनी अच्छी स्पीकर हूँ। ये सब कॉन्फिडेंस नहीं होता। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि भाई जो सिचुएशन आएगी, आई विल हम्म। हैंडल। ठीक है। अपने आप में वो विश्वास आपको लेके आना है कि भाई, आई डोंट नो द सोल्यूशन राइट नाउ, हम्म। बट व्हेन द सिचुएशन विल अराइज, आई विल हैंडल इट। अभी तक भी करते हुए आ रहे हो ना। अगर आप यहाँ पे बैठे हुए हो, ठीक है, एट दिस मोमेंट ऑफ लाइफ यू हैव डेल्ट विद ईच एंड एवरी सिचुएशन दैट हैज कम योर वे। हम्म। ठीक है, भले ही आपने रोके किया हो, गिव अप कर दिया हो, फिर आप पहुंच गए हो वहां पे, कुछ भी तरीका आपने अपनाया हो, हेल्प मांगी हो, आपने हैंडल किया सिचुएशन, तो आगे भी कर ही लोगे, है ना। हम्म। तो सेल्फ डाउट रहेगा, फेलियर के चांसेस भी रहेंगे, जस्ट कन्विंस योरसेल्फ कि मैं हैंडल कर लूँ, इट ठीक इज है। ऑन मी, इट इज माई डे, इट इज माई वर्क। और इसके साथ एक और चीज ये भी है कि खुद से हमको कनेक्शन एस्टैब्लिश करना वेरी इंपॉर्टेंट, हम्म। राइट। जितना आप सेल्फ अवेयर होगे, जितना आप खुद से मिले हुए होगे ना, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपका विश्वास बढ़ेगा। ओके। सो वर्क ऑन योर सेल्फ अवेयरनेस एज वेल। हम्म। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस पे हमें काम करने की जरूरत है। और ये चीज, ये थॉट होना चाहिए कि अभी हम जहाँ हैं वहां पर हम बहुत सारे स्ट्रगल्स और सेटबैक्स को पार करके आए हैं, तो हम आगे भी कर लेंगे, विच इज द ट्रू मीनिंग ऑफ कॉन्फिडेंस। या हाँ। एग्जैक्टली। you know this is so empowering and this is powerful as well। आपने ना इतने बड़े प्रॉब्लम को, द सेल्फ डाउट बहुत बिग प्रॉब्लम है, उसको 2 सेंटेंसेस में बहुत पावरफुली प्रेजेंट करा, विच इज इनक्रेडिबल। और वो ना एक एक्सपर्ट से ही आता है। सो थैंक यू so much for being who you are and the impact that you're creating. And audience, I would love to tell you that she runs the life schools, which is specifically for soft skills and confidence building. I will share the link of her school and her profiles in the description, and you can anytime reach out to her. She is there to help you out. Okay, so I'm loving the conversation, and I would love to ask you another question, which is बिल्डिंग कॉन्फिडेंस ना इज अ जर्नी। हमको रोज काम करने की जरूरत पड़ती है, कुछ ना कुछ हमें डेली बेसिस पे अपनी प्रैक्टिसेस में लेके आना पड़ता है, कुछ रिचुअल्स बनाने पड़ते हैं। तो आप मतलब क्या सजेस्ट करोगे ऑडियंस को कि हम इस जर्नी को फिजिबली कंटिन्यू करते रहें? Okay. First of all, it's very important to be aware of what you have. ओके। I have realized one thing कि मुझे जो सक्सेस मिलना धीरे धीरे चालू हुई, हम्म। that came after I started being grateful for what I already have. So if you can, like एक अलार्म लगा लो आप, ठीक है, शाम के 5 बजे, सुबह, रात में, जब भी, if you can list down 5 things you're grateful for every day, बहुत चेंज सीखोगे आप। सी, सब कुछ ना हमारे माइंडसेट से ही है, सब कुछ हमारे माइंडसेट से। आई गिव यू एन एग्जांपल। एक कंपनी थी, शूज की कंपनी, ठीक है, उसने एक आइलैंड पे 2 लोगों को भेजा कि यहाँ पे मार्केट रिसर्च करके आओ, देखो कितना स्कोप है हमारे प्रोडक्ट। एक इंसान ने बोला यहाँ पे हमारा बिल्कुल भी नहीं चलेगा काम, क्योंकि यहाँ पे कोई शूज नहीं पहनता। ठीक है। दूसरे इंसान ने बोला यहाँ पे हमारा काम बहुत ज्यादा चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई शूज नहीं पहनता।
राइट? हम्म सब कुछ हम्म जो है हमारे दिमाग में है, देखो। हम्म माइंडसेट शिफ्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये माइंडसेट कैसे शिफ्ट होगा? जो है उसके लिए हम ग्रेटफुल होना चालू करेंगे। वो हम्म लैक वाली मेंटालिटी नहीं आएगी, वो डेस्परेशन नहीं आएगा कि यार मुझे चाहिए, मुझे तो कॉन्फिडेंट होना है। नहीं, अपने आप हो जाओगे धीरे धीरे करके। बी हम्म ग्रेटफुल। सेकेंड, एक मिरर एक्सरसाइज बहुत ज्यादा अच्छी होती है। या यू हैव टू बिकम योर ओन फ्रेंड, राइट? सो स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड टॉक टू योरसेल्फ। आपको पता है, आप मिरर के सामने खड़े होगे ना, तो काफी लोग अपने आप से आई कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, खुद को देख नहीं पाएंगे। तो खुद को देखना है, समझना है, जानना है, अपने आप से बात करनी है, और अपने आप को अच्छी अच्छी चीजें बोलते रहना। हम्म दैट विल रियली हेल्प यू इन इंक्रीजिंग कॉन्फिडेंस। ओके, ठीक है। तो आपने बताया मिरर एक्सरसाइज हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एक माइंडसेट होना चाहिए विच इज प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव माइंडसेट। और वो हम कैसे बनाएंगे? बाय बीइंग ग्रेटफुल फॉर एटलीस्ट 5 थिंग्स। और वो भी हम कैसे करेंगे? बाय सेटिंग एन अलार्म, लाइक एवरी डे फॉर 2 मिनट्स। आई डोंट थिंक ये ग्रैटिट्यूड फील करने के लिए, लिखने के लिए या बोलने के लिए आपको 2 से 3 मिनट से ज्यादा लगेगा, तो इतना तो हर कोई कर सकता है। एंड लुक अराउंड यू ना, अगर मेरी टेबल नहीं होती, मेरी चेयर नहीं होती, मेरे बाल नहीं होते, मेरे पास कपड़े नहीं होते, नाखून नहीं होते, बॉटल नहीं हम्म होता, पानी नहीं होता, सही बात है। चार्जर नहीं होता, पेन नहीं होते, कॉपी नहीं होती, कितनी छोटी छोटी चीजें हैं। ट्रू। चादर नहीं होती, तकिया नहीं होता, बिस्तर नहीं होता, हम्म शूज नहीं होते, सॉक्स नहीं होते। तो ये सब चीजें हैं, तो हम नोटिस नहीं कर रहे हैं। बट हम्म नहीं है तो फिर कितनी जिंदगी मुश्किल होती हमारी, हम्म राइट? तो ग्रेटफुल होने के लिए उन्होंने टू लुक फॉर द बिग थिंग्स। अरे ठीक है, पहले लिस्ट होगी, फैमिली के लिए है, फ्रेंड्स के लिए है, काम के लिए है, खाने के लिए है। देन मूव ऑन हम्म टू स्मॉलर थिंग्स। भाई एसी का रिमोट नहीं है, मैं एसी कैसे चलाऊंगी? सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस रिमोट दैट आई हैव विद मी, yeah, राइट? सो इट्स इंपॉर्टेंट टू नोटिस दीज स्मॉल थिंग्स एज वेल। हम्म। और सच में इन चीजों को ना जब हम एड्रेस करते हैं और ग्रेटफुल फील करते हैं, तो हमारे अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आता है कि यार आई एम सो प्रिविलेज्ड दैट आई एम ब्लेस्ड विद ऑल दीज थिंग्स। और ये ही हमको आगे पावर देता है कि हम अपने आप को आगे काम करते रहे अपने ऊपर और बढ़ते रहे। वाह, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। ओके, सो आई एम जस्ट लविंग द कॉन्वर्सेशन। मुझे बहुत सारी चीजें सीखने मिल रही हैं। और द बेस्ट पार्ट विच आई एम लविंग अबाउट दिस कॉन्वर्सेशन इज यू आर गिविंग ऑल द solutions, addressing all the issues in a very simpler way but profound manner. So just loving the conversation. I'm very sure that the people who are going to watch this podcast are going to learn a lot from you, dear. आई रियली होप सो, आई रियली होप सो। Okay, so now my next question is, कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि लोग हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं, या हम कुछ बोलना चाह रहे हैं तो लोग उसको परसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो द फीलिंग ऑफ बीइंग अनहर्ड, ये फीलिंग हमें बहुत ज्यादा हर्टफुल होती है, हमारे लिए बहुत हर्ट करती है। तो आप क्या एडवाइस करोगे लोगों को अपने कॉन्वर्सेशंस को बेटर करने के लिए, सो दैट कभी कभी ऐसा होता है कि लोग लोग ही इंटरेस्ट नहीं शो करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी बात ठीक तरह से कह ही नहीं पा रहे हैं, पर एंड रिजल्ट ये होता है कि हम अनहर्ड साउंड करे जाते हैं, और फिर हम बहुत हर्टफुल फील करते हैं, और उसके बाद हम आगे कोशिश ही नहीं करते कि हम किसी से कुछ बात कर पाए। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या एडवाइस करोगे लोगों को, क्या करना चाहिए? दो चीजें हैं मनीषा। ओके, First, like you've come up with very interesting questions that I have to give this to you. Very good questions you're asking. थैंक So, यू। first ये है कि look at the environment. ठीक ओके, है, अगर आप गुस्से में हो, आप मेरी एक भी बात नहीं सुनो। बिल्कुल। So, look at the environment, look at the person. अगर वो इंसान काम में है, ठीक है, वो इंसान हम्म distracted है, फोन में घुसे हुए हैं लोग, ठीक है, हम्म। आपकी बात नहीं सुनेंगे। ठीक है। तो पिक अ टाइम इफ पॉसिबल हम्म फॉर यू, कि जब वो इंसान एक शांत उसमें हो, हम्म माइंड सेट से बैठा हुआ हो, राइट? हम्म तब चांसेस ज्यादा हैं कि लोग आपकी बात सुने। एंड मेक श्योर दैट यू आर ऑल्सो फीलिंग काम, राइट? हम्म हम्म उसके अलावा दूसरी चीज ये है कि यू हैव टू
I am not saying be rude, but be assertive. रूड ओके। हो गया, इफ यू विल बी रूड पीपल विल बिकम डिफेंसिव, आपकी बात नहीं सुनेंगे। ठीक है, ट्रू। बॉसी हो जाओगे, दे विल नॉट लाइक यू एंड दे विल नॉट लिसन टू यू। ठीक है, हम्म। हम्म। बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहोगे तो इग्नोर तो वैसे भी हो ही रहा। ठीक है, सो इफ टू फाइंड अ वे टू बी असर्टिव हम्म। बट पोलाइट एट एंड ऑल्सो ओके। कीप इन माइंड, इंटेलिजेंस का मनीषा एक बहुत ज्यादा बड़ा साइन होता है हम्म। कि आप सामने वाले से उस तरीके से बात करते हो जिस तरीके से उसको समझ में है। ओके। ठीक है। अब मेरी मान लीजिए कोई क्लाइंट है, वो हाउसवाइफ है, वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, अब मैं उनके हम्म। साथ बड़े बड़े वर्ड्स यूज करूंगी। हम्म। ठीक है, तो उन्हें मतलब होगा इन चीजों से, उन्हें समझ में ही नहीं आएगा। हाँ। या कोई कॉलेज स्टूडेंट है, हम्म। तो मुझे उस तरीके से उसके एग्जाम्पल्स में बात करनी है। कोई हम्म। प्रोफेशनल है, सो आई टॉक टू दैट पर्सन इन दैट वे। ठीक है, हम्म। टू लर्न, दिस इज अ स्किल, लर्न टू टॉक टू द पर्सन कि हम्म। उनको समझ में आए आपकी बात पहले। ओके। यहाँ पे आपका मकसद खुद को शो ऑफ नहीं करना कि अरे मैं कितने बड़े वर्ड्स यूज कर सकता हूँ, मुझे कितनी नॉलेज है। यहाँ पे आपका मकसद है कि सामने वाले को समझ में आया, राइट, हम्म। दैट इन वेरी ट्रू। क्या बात है। के अलावा हम्म। अगेन ऑल ऑफ दिस हैज बिन डन। ठीक है, हम्म। हम्म। ये आपने किया भाई, आपने अच्छे से बात की, आपने हम्म। एक अच्छा टाइम देख के बात किया, फिर हम्म। भी सामने वाले ने आपकी बात नहीं सुनी, देन दिस हम्म। इज आउट ऑफ योर कंट्रोल। मतलब वो अच्छा। इंसान आपकी बात ठीक है। सुनना ही नहीं चाहता, राइट। ओके। हम्म। तो ठीक, आपका काम है बताना, कम्युनिकेट करना, आपने वो कर लिया एंड देन योर वर्क योर लिस्ट। हम्म। Okay, so let me brief it up. Like, you just need to figure out the right timing और राइट इंटेंट एज वेल। मतलब हमको बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा बोला कि अगर हम बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं तो वैसे भी इग्नोर हो ही रहे हैं। तो पोलाइट बट असर्टिव, इट्स नाइस बट नॉट टू बी रूड। वाओ, दैट्स सो नाइस। और अगर उसके बाद भी लोग नहीं सुन रहे हैं तो मतलब है कि वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। या ओके। ठीक है, तो मतलब अपनी तरफ से अच्छे से आप अपने आप को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करो, राइट टाइमिंग फाइंड आउट करके आप अपनी बात कहो, और उसके बाद लेट इट गो। इफ हाँ, समवन वांट्स टू एड्रेस तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। नो, लॉट ऑफ पीपल आउट देयर जिनसे आप सेम बात कह सकते हो और शायद वो आपकी हेल्प कर पाए। सही। एंड उस तरीके से कहो कि जिस तरीके से सामने वाले को समझ में आए। यस। अच्छा, मुझे ये वाला पार्ट थोड़ा सा और आप क्लियर करोगे क्या, कि सामने वाले को समझ आए तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि सामने वाला क्या, मतलब किस किस अप्रोच से हमारी बात को ले रहा है, कैसे सोच रहा है, क्योंकि ये तो हमें नहीं पता ना कि सामने वाला कैसा सोच रहा है या वो कौन से स्टेट में है, तो इसको कैसे डील करेंगे। हाँ, आप एकदम सही कह रहे हो, आपको नहीं पता। ठीक है, हम्म। अब भाई सामने वाले की अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, हम्म। सामने वाले की थॉट्स डिफरेंट है, ओपिनियंस डिफरेंट है। ठीक है, एंड हम्म। आई नोटिस वन थिंग इन स्पेशली इन दिस करियर कि लोग ना वहीं तक जाते हैं जहाँ उनका दिमाग उनको लेके जाता है। नई ठीक। बात सोचना समझना ना बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए, वो अक्सर नहीं करते। अच्छा। इसलिए आई सेड कि ट्राई टू यूज द वर्ड्स दैट दे आर यूजिंग। ओके। ठीक है, ट्राई टू यूज हम्म। द टोन दैट दे आर यूजिंग, ट्राई टू यूज द एग्जाम्पल्स जो उनके आसपास रिलेटेड आपको लगता है। अगर आप किसी कॉर्पोरेट वाले इंसान से बात करो, सो ट्राई टू यूज द एग्जाम्पल्स जो उनके ऑफिस में होते होंगे, राइट, और हम्म। जो वर्ड्स हम्म। जो वो यूज करते होंगे आपको लगता है। सेम विद हाउस वाइफ, सेम विद कॉलेज स्टूडेंट, सेम विद योर पार्टनर, राइट। ओके। अब जैसे मुझे आर्ट पसंद है, हम्म। मतलब मान हम्म। लीजिए मेरे पार्टनर को आर्ट पसंद है, सो इफ आई वांट टू एक्सप्लेन समथिंग टू हिम, तो मैं वो एग्जांपल्स लेके उसको समझाऊंगी, तो हो सकता है कि वो ज्यादा अच्छे से समझे, राइट। ओके। ठीक है, समझ गई। तो बट आपको सामने। कि सॉरी, हाँ। उनकी थिंकिंग ना वहीं तक जाती है, इट्स हम्म। वेरी लिमिटेड। ओके। तो वो आपको भी अपनी तरीके से ही समझेंगे जैसे हम लोगों को अपनी तरीके से समझ हम्म। रहे हैं। तो लोगों से उसी लैंग्वेज में बात करना जिस लैंग्वेज में उनको समझ आता है। ओके, सो वी नीड टू वर्क
ऑन द वोकैबुलरी स्पेशली, वो क्या बात करने में यूज करते हैं चीजें, किस एनवायरनमेंट में डेली बेसिस पे रह रहे हैं, ओके, क्या एटमॉस्फेयर है उनके अराउंड, ठीक है, आप समझ आया। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। ओके, सो बहुत अच्छा। एक ये जो टॉपिक है जो हम अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये ना बहुत सारे लोगों की काफी सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने वाला है, क्योंकि ये बहुत कॉमन, बेसिक, पर डिस्कस ना किए जाने वाले बात है। लोग ना इस तरीके की बातें किसी से डिस्कस करने में ना थोड़ा हिचकिचाते हैं। वो सोचते हैं यार मैं किसी से ये कहूंगा कि मैं अपनी बात किसी के सामने कह नहीं पाता, तो वो क्या सोचेगा, है ना? आई तो एग्री, तो ये हम कोचेस बैठे हुए हैं। हाँ, और तभी आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जिस तरह से आप अपनी बातें यहाँ पे बता रहे हो ना, बहुत सारे लोगों, हर तरीके के ऑडियंस को केटर करेगा ये, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो हाउस मेकर्स हो, चाहे वो कॉर्पोरेट्स हो, मे बी कितने भी बड़े हो, या किस किस लाइफ के किसी भी चैप्टर पे हो, हर कोई इससे रिलेट कर पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस इंसाइटफुल एंड पावरफुल कॉन्वर्सेशन। Thank you, Manika. Thank you for asking the right questions. That's also very important for a good conversation to happen. थैंक यू। नहीं, मैंने आपकी पूरा इंस्टाग्राम पेज विजिट करा ना, तो बहुत सारी चीजें आप करते रहते हो। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और भी था, आप काफी सारे ब्रेन एक्सरसाइजेस शेयर करते रहते हो बच्चों के लिए, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए ना। आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट दैट। कैसे हेल्प करता है वो, और कितना इम्पैक्ट क्रिएट करता है? जैसे ये एक्सरसाइज है, मान लीजिए ये, ठीक है। हाँ। तो ये ब्रेन एक्सरसाइज है ये। तो अब ओके। ये करो करो करो, आप करो, ट्राई। फिर से करनी है, मुझे नहीं आ रहा। पिंकी हम्म। थंब टुगेदर, हाँ, क्लोज पिंकी थंब। सॉरी, दिस, ठीक है। पिंकी थंब। हम्म। This, हम्म। close, this. यस, वेरी गुड। Thank you. Okay, I'm learning it live. Thank you. हाँ, Yeah. हो गया, वेरी गुड, नहीं बस स्पीड बढ़ानी है आपको। तो Yeah. अब ये ना, मुझे नहीं असर कर रहा कुछ भी, अच्छा। आपको असर करेगा, क्योंकि मुझे आता है। हम्म। राइट, कोई भी एक्सरसाइज तब तक असर करती है जब तक ये ब्रेन डेवलपमेंट वाली जब तक आ नहीं जाती। अब मुझे क्या, देखियो कितने आसानी से मैं कर लूंगी, तो हाँ। इट इट हैज नो इफेक्ट ऑन माय ब्रेन। ओके, ठीक है। ये एक्चुअली, मैं, मेरी ये वाली रील ही वायरल हो गई थी, इट गॉट 9.8 मिलियन व्यूज। Oh my ये, God, that's brilliant. हाँ। Huge. तो इट वाज सो अनएक्सपेक्टेड, आई जस्ट शेयर्ड दिस नॉर्मली, मैंने कुछ सोचा नहीं था, and it gave me 1 lakh plus follow, this reel alone gave me 1 lakh Wow. plus followers, and so ये बहुत ज्यादा अच्छी होती है ब्रेन के लिए, हम्म। न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये बहुत डिटेल में तो मुझे भी नहीं पता, बिकॉज आई एम नॉट अ न्यूरो सर्जन और समथिंग, पर जितना हम्म। मैंने पढ़ा है, ये आपका हम्म। कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ाती है। ओके। या, और आपको थोड़ा तेज करती है आपके दिमाग को, जैसे ब्रेन फूड टाइप की है, जैसे सुडोकू अच्छा। होता है, हाँ एंड हाँ। जो ब्रेन फूड्स होते हैं वेरी गुड फॉर आवर ब्रेन, सो ये दीज एक्सरसाइजेज हम्म। आर ब्रेन ब्रेन फूड। ओके। वाओ, सो आई वुड लव टू टेल अवर ऑडियंस कि आपने बहुत सारी और भी ब्रेन एक्सरसाइजेस शेयर करी हैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे, तो आप जाओ और वो ब्रेन एक्सरसाइजेस सीखो और प्रैक्टिस करो और अपने ब्रेन को पॉलिश करो। सो ओके, सो आई एम नाउ गोइंग टू, एक तो मैंने आज आपसे सीख ली है, और भी मैं आपकी प्रोफाइल से देख के हाँ, सीखूंगी, अपने ब्रेन को 15 भी पॉलिश 16 are करूंगी। there, 15 16 are there, go visit the life skill school. ओके, श्योर, मैं तो पक्का करने वाली हूँ ये। ओके, सो अभी द नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे आपसे पूछना है वो ये कि एज अ कोच ना, हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि हम अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने जो लोग आ रहे हैं हमारे पास हेल्प करने के लिए, उनके लिए एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखें। और आपने अपने इंट्रोडक्शन में मुझे बताया गया दैट यू क्रिएट अ वेरी सपोर्टिव एटमॉस्फेयर। और अभी ना आपसे बात करके मेरे को एकदम समझ आ रहा है दैट हाउ flawlessly and how comfortable you make your people around you. So थोड़ा सा मुझे उसके बारे में जानना था कि
कैसे, क्या टेक्निक्स हम ऐसे अप्लाई करें जिससे हमारे क्लाइंट्स को हमारे ऊपर ना कॉन्फिडेंस आए और ऐसा लगे कि यार शी इज द पर्सन टू रीच आउट, शी इज द पर्सन जिससे मुझे सीखना है। तो कैसे कर सकते हैं वो? दिस इज आई थिंक बहुत सारे कोचेस के लिए और ट्रेनर्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। हाँ ओके, ये आंसर होने वाला है जेन्युइनली, ठीक है, मैं थोड़ा रेडी हो जाती हूँ इस आंसर। Yeah. वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। सो मैं ना सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर्स भी लोगों को बनाती हूँ, ठीक है, सो ये हम्म सर्टिफिकेशन भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। सो द हम्म नंबर वन थिंग आई टेल पीपल, हम्म फर्स्ट ऑफ ऑल द सेशन इज नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम। बहुत लोग भूल जाते हैं, ठीक है। हाँ The ठीक है। session is not about you. The workshop is not about you. It is about the audience. It is about the people who are listening to you. ठीक है, हम्म ये याद रखना है। true। यहाँ पे लाइक आई सेड, बड़े बड़े वर्ड्स फेंक के नॉलेज शो करना जरूरी नहीं है, लोगों को समझ में आए वो बात करना जरूरी है, हम्म ठीक है। ठीक है। दूसरी चीज, नाउ आई मेक श्योर, एंड आई थिंक दिस इज द साइन ऑफ अ गुड ट्रेनर एज वेल, मैं ये भी सिखाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि इफ अ पर्सन इज थिंकिंग दैट यू आर गुड एट हम्म योर जॉब, तो आपका हम्म सेशन एवरेज रहा है, बहुत अच्छा नहीं रहा है। ठीक है। बट इफ अ पर्सन इज लीविंग थिंकिंग हम्म दैट दे आर वेरी गुड और ओके। उनको अपने बारे में अच्छा लग रहा है, तो आपने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया, अच्छा राइट। सो ठीक है। मेक श्योर ओके। दैट दिस हैपेंस, मेक श्योर दैट पीपल लाइक themselves more when they talk to you. If they're liking you, हम्म very good, but if they're liking themselves, तो आप हम्म एक्चुअली बहुत अच्छी वैल्यू इस दुनिया में क्रिएट कर रहे हो, बिकॉज हम्म सेल्फ हेट्रेड इज अ ट्रेंड। yeah। खुद से नफरत करना इज कूल। ये इस पैटर्न से हमको बाहर लेके आना है लोगों को, राइट। तो खुद से प्यार करना सिखाना है लोगों ओके। को। एंड ये कब होगा पता है, जब आप खुद में श्योर होगे, खुद से प्यार करोगे, राइट। हम्म जब आप खुद yeah। से प्यार करोगे ना, तो आप दूसरों को, एंड यूर सो, अभी मैं आपके सामने हूं ना मनीषा, देयर इज नो हम्म प्रिटेंस, कुछ नहीं है, मैं ऐसी ही हम्म हूँ। हम्म अगर हम एज फ्रेंड्स भी मिलते ना, तो मैं आपसे ऐसी ही बात कर रही होती। अगर आपके हम्म क्लाइंट होते ना, तो भी मैं आपसे ऐसी ही बात कर रही होती, हम्म ठीक है। तो हम्म आई एम माई सेल्फ, सो यू कैन बी योर सेल्फ अराउंड मी, क्योंकि आपको yeah। पता है भाई, यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं हो गया, ठीक है। आई हम्म हैव नॉट कम विद दिस इंटेंशन कि अरे मैं तो इम्प्रेस कर दूंगी, नहीं भाई, मैं जैसी हम्म हूँ वैसी आ रही हूँ, ठीक है। हम्म एंड यू ऑल्सो कम एज यू आर। तो वो yeah। कंफर्ट, आप खुद से कंफर्टेबल हो तो दूसरों को भी कंफर्टेबल कर पाओगे। तो खुद पे काम करना बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी। इसलिए मेरे हम्म कोर्स में पहले मैं लोगों को ट्रेन करती हूँ, फिर आई हम्म ट्रेन बी अ ट्रेनर, बट आई एम लाइक पहले खुद सीखो फिर सिखो, इज इम्पोर्टेंट। ट्रू ट्रू वेरी ट्रू। ठीक है। ओके। वाह, वो तो आपने कितना अच्छा, मुझे तो सारी बातें बहुत अच्छी लग रही है और मैं बार बार वही वर्ड यूज कर रही हूँ। तो नहीं, वो सच में बहुत सॉलिड है कि सेल्फ हेट्रेड ना, और ये वाला जो फीलिंग है ना लोगों के अंदर क्रिएट करना कि यार मैं भी कुछ हूं यार, आई हैव डन समथिंग, आई हैव दीज पावर्स, ये रियलाइजेशन कराना इज इनक्रेडिबल। और यस, आपने बहुत सही बोला, बहुत सारे लोग ना अपने ऊपर ही सोचते रहते हैं यार, क्या क्या मैं बोल दूं, क्या मैं कर दूं जिससे एकदम मेरा क्या बोलते हैं उसमें क्या हो जाए। हाँ हाँ हाँ, सब एकदम बड़ा बड़ा सब बोल के और अपना इम्पैक्ट क्रिएट करूं, पर वो ये भूल जाते हैं कि हमें सर्व करना है और हमें वैल्यू क्रिएट करनी है, तो जो हमारे पास आया है उसको ऐसा फील होना चाहिए। दैट्स वेरी नाइस। एंड आई थिंक दैट्स लवली अबाउट योर कोर्स एज वेल कि आप अपने कोर्सेज में पहले लोगों को सेल्फ लव करना सिखाते हो, खुद पे काम करना सिखाते हो, और उसके बाद उनको ट्रेनर बनाने की ट्रेनिंग देते हो। वाओ, दैट्स ब्रिलियंट। और एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, योर ऑथेंटिसिटी, कि आप मुझसे भी बात कर रहे हो तभी ऐसे हो, क्लाइंट्स के साथ भी ऐसे हो, फ्रेंड्स के साथ भी ऐसे हो। दैट्स नाइस, दिस इज योर ओन brand that you have built over the time. Many congratulations, thank you. I can feel that authentic energy through this Zoom call, sitting like miles away from you. That's incredible. या
Okay, so the next question which I would love to ask from you is what exciting trends अभी आपको ना, जैसे आगे ये इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है, अब लोगों को ना सॉफ्ट स्किल्स के बारे में पता चलने लगा है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स होती हैं इन सब चीजों को लेकर के। तो अभी आपको आगे इसका क्या फ्यूचर दिखाई देता है, क्या एक्साइटिंग ट्रेंड्स आपको नजर आते हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए और ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्पेस में? क्योंकि ना ये एक एक्सपर्ट से जब आएगा ना तो लोगों को ज्यादा साउंड करेगा, उनको ज्यादा ऑथेंटिक लगेगा। सी ये ना एक बज वर्ड बन चुका है, हम्म। सॉफ्ट स्किल, हाँ। राइट। हम्म। सबको, मतलब अगर आपके पास टैलेंट इतना है, आई सॉ दिस हम्म। वीडियो, वेरी नाइस वीडियो, अगर आपके पास टैलेंट इतना है लेकिन आप कम्युनिकेट इतना कर पाते हो ना, तो लोगों को लगता है आपके पास टैलेंट भी इतना ही है। तो आपकी हम्म। वैल्यू मार्केट में उतनी ही है जितना आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो लोगों से। ठीक है। कुछ लोग के हम्म। पास टैलेंट इतना होता है लेकिन वो कम्युनिकेट इतना करते हैं तो उनकी वैल्यू इतनी बन जाती है, हम्म। राइट। तो अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स की पावर नहीं है, आपको लगता है अरे कोई मेरा टैलेंट देख लेगा, नहीं भाई, थोड़ा शो हम्म। करना पड़ता है, थोड़ा सा बताना पड़ता है, मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैंने ये किया। हम्म। करना ही पड़ता है, जो दिखता है वो बिकता है, हाँ जी। राइट। इफ ट्रू। यू वांट अ हायर पैकेज, हम्म। इफ यू वांट टू रीच टू मोर पीपल, कंटेंट हम्म। क्रिएशन, हम्म। बात तो करनी करनी चाहिए ना, बात ही नहीं कर पाओगे कैमरे के सामने में तो कैसे काम चलेगा। या कॉन्फिडेंट ही हम्म। नहीं दिखोगे कैमरे के सामने, सो व्हाई विल पीपल फॉलो यू, हम्म। राइट। हम्म। तो हम्म। कॉन्फिडेंस तो हर चीज में जरूरी है। ठीक है। एंड ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड, मैं तो शुरुआत 7 साल के बच्चों से की थी। हम्म। शुरुआत में मैं बच्चों से ही पढ़ाना चालू किया था और फिर आई हम्म। शिफ्टेड टू अडल्ट्स। तो सात हम्म। साल के से लेके 60 साल तक के बच्चों को मैंने पढ़ाया ना, एवरीवन नीड्स कॉन्फिडेंस। 55 56 हम्म। की उम्र में नया करियर चालू करते हैं लोग, हम्म। कर हम्म। हम्म। थोड़ा सा पुश, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड दे आर रेडी टू। हम्म। बहुत बहुत ज्यादा इसका स्कोप पड़ने वाला है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अभी तो ठीक। शुरुआत है बस। हाँ। बहुत अच्छा। और मैंने ना आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे देखा भी, आप बच्चों के साथ बहुत सारे एक्सरसाइजेस करते हो, उनको उनको आप अफर्मेशन सिखाते हो, ग्रैटिट्यूड सिखाते हो। वेरी नाइस। और बहुत अच्छा बोला आपने कि 5 साल से या 7 साल से बच्चे बच्चे को लेकर के 55 60 साल तक के लोगों को कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। वाह। और फिर इस वर्ल्ड में मतलब अभी ना कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है कि अगर आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं करोगे अच्छी तरह से तो आप अपनी वैल्यू गेन ही नहीं कर पाओगे मार्केट में। इसलिए प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिलियंट। Exactly. वो नहीं थैंक है यू। तो नहीं है। ये तो है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस पावरफुल आंसर, क्योंकि ना ये बहुत सारे लोगों को जरूरत है और बहुत सारे लोगों को इसकी वैल्यू शायद पता नहीं है, पर उनको जरूरत है। तो ये जानने की बहुत जरूरत है कि आपको जितना आता है एटलीस्ट उतना बताओ। और आपने ये बात बहुत सही बोली कि बहुत बार ना हम ये सोचते हैं कि यार अगर मैं अपनी ये वाली स्किल दिखा दूंगी तो लोग कॉपी करने लग जाएंगे या कहेंगे क्या क्या करते रहते हैं ये वो, मतलब बहुत सारी चीजें आने लग जाती है। पर ऐसा नहीं है, जब तक हम दिखाएंगे नहीं तब तक पता ही नहीं चलेगा कि हमारे अंदर कुछ पावर भी है या हम कुछ अलग कर भी रहे हैं। वेरी नाइस, बिल्कुल। वेरी brilliantly put. Thank you so much for sharing this. I just loved the way you answered each and every question. Lovely. थैंक यू मनीषा, थैंक यू सो मच। Sakshi, I think we are at the end of the session, very near to the end of the session. I don't want to end it up. I'm just loving the conversation, but time is a constraint. So, the only thing which I would love to ask from you by the end of this is थोड़ा सा अपने जैसे आप द लाइफ स्किल स्कूल चलाते हो तो उसमें आप कौन से एज ग्रुप से लेकर के कौन से एज ग्रुप तक के लोगों को केटर करते हो, और मतलब क्या क्या थोड़ा सा और मेरे को जानने में
आई एम एक्साइटेड टू नो। आपने थोड़ा तो ग्लिम्स दिया था हमारे कॉन्वर्सेशन के बीच में, थोड़ा सा और बताइए। ठीक है। सो अभी मैंने अपनी सर्विसेज शिफ्ट कर दी हैं फॉर पीपल अबव द एज ऑफ 25 years, ओके। right? So if you're a professional, corporate professional, any kind of profession, or if you're a housewife, you can contact me. ठीक ठीक है। है? And I offer two courses. One is personality development. Second is soft skills trainer course. So ठीक है। personality development में we talk about confidence building, public speaking skills, anger and stress management, हम्म। self-awareness, leadership, etc. Soft skills trainer में I teach you all of this, and then I teach you how to become a trainer. तो उसमें ओके। तो उसमें वी हैव कंटेंट क्रिएशन, इसको अर्निंग अपॉर्चुनिटी कैसे बनाएं, क्या क्या अलग अलग तरीकों से आप अर्न कर सकते हो इसमें। इनफैक्ट मेरे काफी सारे क्लाइंट्स तो वर्कशॉप्स भी होस्ट करने लग गए हैं, एंड आई लाइक कंप्लीट हैंड होल्डिंग इज बीइंग गिवन टू देम कि क्या कंटेंट रखेंगे, मार्केट कैसे करेंगे, एवरीथिंग आई एम डूइंग विद देम, राइट? सो ईच एंड एवरीथिंग वी डू टुगेदर। तो ये रहता है, एंड देन यू बिकम अ सर्टिफाइड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर। Okay, brilliant. So can you share with us, I mean, any story of your client, any specific story that would, I think, be much relatable to the audience? बहुत सारी हैं, बहुत हाँ, सारी आपके पास तो होंगी कोई एक जो close to your heart. Let me think. Like so हाँ, many sure. things started running now, so I have to choose one. Okay. बहुत सारी हाउसवाइफ्स आती है मेरे पास। Hmm. I love working with housewives यार, I love working with housewives. So Hmm. एक हाउसवाइफ आई, Hmm. उन्होंने ना अभी अभी अपना काम चालू किया था, भगवत Hmm. गीता सेल करती थी वो, ठीक है? अच्छा, ठीक ऑडियो है। वर्जन ऑफ भगवत गीता, वो किसी कंपनी से एसोसिएट हुई थी। Hmm. वेरी नाइस, मतलब मेरी मम्मी की एज की थी वो, सही में Hmm. 54 years old मम्मी की एज की। एंड Hmm. उनसे ना, उनको बस ये था कि कोई बस मेरी बात सुन ले। जस्ट Hmm. वांट माय इयर्स, पता है, कोई मेरी Hmm. बात सुन ले। तो आधा घंटा बोलती थी पहले, एंड हाँ। देन शी वांटेड कि भाई उसमें से कुछ कोई पिक कर ले कोई बात, ओके। राइट? एंड देन ठीक उनको है। समझा दे, और वो खुद अपने अच्छा। आप से पूरे सॉल्यूशंस निकाल लेती थी, सब कुछ कर लेती थी। शी जस्ट Hmm. वांटेड समवन टू लिसन टू हर विदाउट जजमेंट एंड गिव अ लिटिल इनसाइट। तो बस उतना ही किया, वो बहुत कॉन्फिडेंट हो गई, बहुत आगे बढ़ गई, इतने सारे पब्लिक के सामने उन्हें प्रेजेंट करना चालू कर दिया ऑन अ डेली बेसिस या ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो इट वाज सो इंस्पायरिंग टू वॉच। एक और हाउसवाइफ थी, Hmm. she came from a very abusive background, horrible background, horrible, like all the worst things you can imagine happened to her, ठीक है? Sure. Hmm. हमने ऑब्वियसली उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया था, Yeah. तो पर मेहनत की हम लोगों ने, उन्होंने अपने आप को, और वो थी उस एनवायरनमेंट में, एक अब्यूजिव हस्बैंड के साथ थी, बच्चों पे भी ध्यान नहीं देते थे, हाउस वाइफ थी तो मॉनिटरी भी पूरी तरीके से डिपेंडेंट थी, एंड हर हस्बैंड वाज नॉट ट्रीटिंग हर वेल। उन्होंने Hmm. काम किया अपने आप के ऊपर, हमने साथ में काम किया, Hmm. ठीक है? तो फिर धीरे धीरे करके पहले तो वो उस एनवायरनमेंट से कहीं और शिफ्ट हुई, दूसरे शहर शिफ्ट हुई, अपना Okay. काम चालू करना Next चालू step. किया उन्होंने। हाँ, Hmm. एंड नई नई चीजें उन्होंने सीखी। इतनी चीजें करती है ना आप, वो मनीषा मैं बता नहीं सकती, इतना पता है वो ऑरा चेंज हो गया पूरी तरीके से, उनकी पूरी Hmm. बॉडी इतनी रिलैक्स हो गई, इतनी Hmm. कॉन्फिडेंट हो गई, बातें इतनी अच्छे से करती हैं वो अब। तो आप Hmm. एफर्ट डालो ना, तो रिजल्ट्स मिलेंगे। खुद से डालो, किसी और की हेल्प से डालो, बट ये जो सिचुएशन है ना आपकी, परमानेंट सिचुएशन नहीं है। Hmm. थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी, थोड़ी सी जिद की मुझे निकलना है, विल गेट यू आउट ऑफ एनी सिचुएशन। Hmm. Wow. Amazing. This is life changing. बहुत बढ़िया। Many congratulations. बस एक और स्टोरी सुनने का मन कर रहा है। बस थोड़ा सा टाइम और लूंगी आपका। आप बच्चों के साथ और हम्म। कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ भी बहुत सारा काम करते हो, तो मेरे को ना उनकी भी थोड़ा कुछ स्टोरी शेयर करिए ना, बिकॉज हमारे ऑडियंस कॉलेज स्टूडेंट्स भी हैं, तो वो बहुत रिलेट कर पाएंगे। एक कॉलेज में मैं गई थी, इनफैक्ट मेरी फर्स्ट जो ऑफलाइन सेशन था, हम्म। 24 hours का था, लाइक 4 दिन, 6-6 घंटा। ओके। बहुत लंबा टाइम होता है भैया, अगर आप लेने जाओ ना, ऐसे बोल रही हूँ तो मैं, इतना नहीं लगेगा,
बट 6 Mm-hmm. घंटा, वो भी फर्स्ट टाइम, इतना तो कंटेंट नहीं था मेरे पास। तो तो वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी एंड आई हैड नो इंटेंशंस ऑफ लेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी गो, ठीक है। Mm-hmm. तो वो वाले स्टूडेंट्स थे जिनका कहीं सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था Okay. प्लेसमेंट। तो वो कॉलेज थोड़ा सा क्रेजी था कि भाई करना है, 100% प्लेसमेंट देना है, देना है, देना है, एंड ये हम्म, प्लेसमेंट नहीं, मतलब ये वालों के बच्चों का हो नहीं पा रहा था प्लेसमेंट। ठीक है। ओके। तो वो 60-70 बच्चों का स्लॉट बच गया था उस वजह से। एंड अब हम्म। इमेजिन कर सकते हो कि अब भाई कॉलेज ने भी थोड़ी सी होप गिव अप कर दी थी, तो वो किस टाइप के बच्चे थे, वो भी हाँ। बहुत कॉन्फिडेंट हो गए थे, अरे मैम हो ही नहीं रहा, कितनी मेहनत करें। बहुत बार हम्म। रिजेक्ट हो चुके थे बेचारे, बहुत बार रिजेक्ट हो हम्म। चुके थे। हम्म। तो तो फिर हमने साथ में काम किया, थोड़ा सा उनने अपने आप के ऊपर काम किया, थोड़ा सा हम्म। मेहनत की, उन्होंने की, मैंने की उनके साथ। इन हम्म। 24 आवर्स में बता रही हूँ ना, एक एक हफ्ते में मुझे मैसेज आना चालू हो गए थे, मैम सिलेक्शन हो गया, थैंक यू मैम, सिलेक्शन, हाँ। मैम सिलेक्शन, भैया बेस्ट फीलिंग, like I had some role to play in, like I'm getting goosebumps right now, या मतलब जिंदगी सवर गई ना बच्चों की। सच में बहुत बहुत बड़ा जॉब काम है। कितना बड़ा स्टेप है जॉब, और वही उनको नहीं मिल रहा था। मैं छोटा सा रोल प्ले किया था कि उनको जॉब मिल जाए, एंड ब्यूटिफुल फीलिंग, ब्यूटिफुल। अभी मैं लाइव जाती हूँ तो ऐसा आ जाते हैं वो बच्चे, मैं भी वेरी हैप्पी, थैंक यू, और ऐसे करके। Wow. हाँ। That's so nice. You're creating so much impact. You're changing lives of people. My God, so nice. And पीपल with आर that, चेंजिंग लाइव्स, आई एम जस्ट हेल्पिंग देम। you're the medium. मीडियम, यस, मैं धक्का मार रही हूँ बस, और कुछ नहीं कर रही हूँ। एंड मुझे वो पॉइंट बहुत अच्छा लगा, आपने बोला ना आपने इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया, बट हाउ डाउन टू अर्थ यू आर, यू सेड इट सो नाइसली कि मैंने तो छोटा सा रोल प्ले किया। ओ माय गॉड, दैट्स सो नाइस, लव्ड इट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। और पता है, ये वाला जो कॉलेज स्टूडेंट्स वाले स्ट्रगल है ना, ये हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है। सो आई थिंक मतलब अब बहुत सारे लोगों को आपने 24 आवर्स में इतना इम्पैक्ट क्रिएट किया, तो समझो कोई आपके साथ कनेक्ट करेगा और एक जर्नी शेयर करेगा तो कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा उनकी लाइफ में। सो आई वुड लव टू टेल आवर ऑडियंस कि गो एंड डेफिनेटली ज्वाइन हर, enjoy her energy, the lessons that she is providing, the skills that she is nurturing. She's amazing, exceptional person. So I just love the conversation, Sakshi. It was amazing. And now Thank I would you, love thank you. to thank you so much. So, do you have any last words to say? And then we'll wrap up the session. Manisha, thank you for hosting. You're an amazing host. I love the way you were summarizing the answers first and then moving on to the next. It's very important. Thank you for understanding what I was saying. It was ज़रूरी होता है. Thank you for having me here. I'm very happy. And to the audience, I would just like to say कि भाई अपने आप पे काम करो. All the change is possible. Everything in the world is possible. थोड़ा सा effort, बस थोड़ा सा effort ज़्यादा लगाना है और सब कुछ हो जाएगा. Wow. Thank you. So, thank you so much, Sakshi, for being my guest. Thank you, audiences, for watching the podcast. I am so thrilled, so grateful to each one of you for being the part of this beautiful journey of spreading smiles all around. See you in the next episode. Love you. Bye.